By the grace of God, we have been studying about the signs in the Bible regarding the last days of this world. इस संसार के अंतिम दिनों के बारे में हम परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर अध्ययन करते जा रहे हैं। No wonder we are all in the last days of this world. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम इस संसार के बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं। As believers, we are so privileged that God has enabled us to have signs that go beforehand, before the last days will dawn upon us. विश्वासी के नाते परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि इसके पहले कि हम पर अंतिम दिन उदय हो उसके चिन्ह हमें दिए हैं। By the grace of God, we studied about 5 signs regarding the last days. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने अंतिम दिनों के बारे में अब तक 5 चिन्हों का अध्ययन किया है। The first sign was the nation of Israel. और इसमें पहला चिन्ह था इस्राएल का देश। When you see the nation of Israel, you will know that the coming of the Lord is drawing near. जब आप इस्राएल देश को देखते हैं तो निश्चय आप जानेंगे कि प्रभु का आगमन तो बहुत ही निकट है। The second sign is the signs in nature. और दूसरा जो चिन्ह है वो तो प्रकृति के चिन्ह हैं। You will see signs in the sky and in the earth. आप आकाश में और पृथ्वी पर चिन्हों को देखेंगे। The third sign is the signs, the happenings in world politics. और तीसरा चिन्ह है कि संसार की राजनीति में बदलाव होगा। We see how the Lord already prophesied about how the governments will change and the kingdoms will follow one after another. और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि सरकार बदल जाएगी और राज्य जो है एक के बाद एक गिरते जाएंगे। The fourth sign we studied about was the degradation of society. और चौथा चिन्ह जिसके बारे में हमने अध्ययन किया वो है कि समाज नीचे गिरता जा रहा है। The fifth sign we studied was last week we studied about the increase of knowledge in the last days. पिछले हफ्ते हमने 5वें चिन्ह का अध्ययन किया है और वो है कि ज्ञान की बढ़ोतरी। There will be a phenomenal increase of knowledge in this world. इस संसार में ज्ञान बहुतायत से बढ़ती जाएगा। Today we are going to go to sign number 6. और आज हम 6वें चिन्ह को यहाँ पर देखने वाले हैं। Turn with me to 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. मेरे साथ में देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से 3। Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers, not to be easily upset in mind or troubled either by spirit or by a message or by a letter as if from us, alleging that the day of the Lord has come. Don't let anyone deceive you in any way, for the day will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये कहता है वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। The Bible says the day of the Lord will not transpire until 2 things happen. बाइबल कहती है कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये 2 जो मुख्य बातें हैं वो प्रकट न हो जाएं। The day of the Lord, which means the day of the Lord's final judgment. प्रभु का दिन इसका मतलब है परमेश्वर के अंतिम न्याय का दिन। And the first sign is there will be a huge apostasy before the coming of the Lord Jesus Christ. यानी प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले बहुत बड़ा धोखा या भरमाना होगा। There will be a huge apostasy. यानी बहुत बड़े रूप में भरमाया जाएगा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? This sign is very different from all the other previous signs I've been dealing with in the past 5 weeks. पिछले 5 हफ्तों से मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बता रहा हूं उनकी तुलना में ये जो पॉइंट है ये तो पूरी तरह से अलग है। All the other signs we saw about the happenings in the world, in the general human society.
अब तक हमने जो 5 चिन्ह देखे हैं वो तो पूरे संसार में मनुष्य के समाज में होने वाली बातें हैं, But this one is specifically targeted to God's children in the church. लेकिन ये तो खास करके चर्च में प्रभु की जो संतान है उनको लक्ष्य बनाकर रखा गया है, निश्चित किया गया है। Therefore, we as believers, we need to be very cautious to know what this sixth sign is all about. और इसीलिए विश्वासी के नाते हमें बहुत ही सचेत रहना होगा और जानना होगा कि ये छठवां चिन्ह क्या है। And this is very threatening and very scary because the Bible says in the last days, the faith of many people will cease. It will dry off and many people will become apostates. They will leave the faith. बाइबल इस तरह से कहती है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि जो विश्वासी लोग हैं वो भरमाए जाएंगे और यहाँ तक कि जो मजबूत विश्वासी है वो भी पूरी तरह से भरमाए जाएंगे। Many people will actually leave the Lord, leave the fellowship, leave the church. बहुत से लोग सच में प्रभु को छोड़ देंगे, संगति और चर्च को छोड़ देंगे। This is very threatening to hear. ये सुनना तो सच में बहुत ही डरावना लगता है, But this is one of the signs of the last days. लेकिन अंतिम दिनों का ये एक चिन्ह जरूर है। The deception in this world will reach its peak that many people's faith will be shaken to the core. इस संसार में धोखा तो इतने ऊंचे पर पहुंचेगा कि बहुत से लोगों का विश्वास हिलाया जाएगा। Then that day will determine who are truly strong in faith and who are very weak and shaky in their faith. और वो दिन इस बात को निश्चित करेगा कि कौन लोग अपने विश्वास में बहुत ही मजबूत हैं और ऐसे लोग कौन हैं जो अपने विश्वास में डगमगाने वाले और कमजोर हैं। In the last days, Satan will start to move with great fury and strength because knowing that his time is very short, he will go around like a lion trying to devour as many as he can. अंतिम दिनों में जबकि शैतान जान लेगा कि उसका समय तो बहुत ही कम रह गया है और इसीलिए वो सिंह की नाई वो इधर उधर भटकते फिरेगा और ढूंढेगा कि वो किसे फाड़ खाए, किसे नाश कर दे। There will be 3 ways he will deceive the children of God. परमेश्वर की संतान को वो 3 तरीकों से भरमाएगा And through this deception, they will become apostates to the gospel they heard. और इस धोखे के द्वारा उन्होंने जो सुसमाचार सुना वो उसके विरुद्ध में जाएंगे। 3 ways. 3 तरीकों से You can write it down. आप इसे लिख लीजिए। Number 1, नंबर 1 है believers will be deceived by false people. विश्वासी लोग झूठे लोगों के द्वारा भरमाए जाएंगे। Number 2, नंबर 2, they will be deceived by false performances. वो झूठे कामों के द्वारा भरमाए जाएंगे। The third one will be believers will be deceived by false preaching. तीसरा है कि विश्वासी लोग झूठे प्रचार के द्वारा भरमाए जाएंगे। This is very, very important to consider इन सारी बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, because this falling away, this apostasy will rise from within the church and it will draw many people away from the faith. क्योंकि ये जो झूठा है, ये जो भरमाया जाना है, ये चर्च से शुरू होगा और ये बहुत से लोगों को विश्वास से भटका देगा। The number 1. नंबर 1, The first way of deception is by false people. धोखे का पहला तरीका है वो है झूठे लोगों के द्वारा, By false people. यानी झूठे लोगों के द्वारा। Matthew 24:24. मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में हम देख सकते हैं, Jesus said, "For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible." यीशु ने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। I said the first way people will be deceived to depart from the faith will be through false people. मैंने कहा कि पहला तरीका जिसके द्वारा लोग विश्वास से भटकेंगे वो है झूठे लोगों के द्वारा। There are 2 categories given there. यहाँ उनके 2 विभाग बताए गए हैं। The first one will be false Christs, the second one will be false prophets. अब पहले है झूठे मसीह और दूसरा है झूठे भविष्यवक्ता। Now, both of these people are usually in their truest form
kept before our eyes with great esteem. अब ये दोनों लोग हमारी आंखों के सामने अपने असली रूप में रखे गए हैं और हम उनका बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे। We honor Christ and we honor prophecy. हम मसीह का और भविष्यवाणी का आदर करते हैं, But Satan will use the same things we keep in high esteem to deceive us in the last days. लेकिन अंतिम दिनों में शैतान इन्हीं चीजों का उपयोग करेगा जिसको हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, सबसे ज्यादा आदर देते हैं। Now, I don't have to explain much about the prevalence of false prophets in our times. मुझे हमारे समय में झूठे भविष्यवक्ता हैं या नहीं इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। We are very well versed with knowing false prophets. हम झूठे भविष्यवक्ताओं को अच्छे से जानते हैं, But one of the big questions is, can false Christs also come? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या झूठा मसीह भी आ सकता है? Can there be false? There's not one. It says in plural. It says false Christs. ये एक मसीह नहीं लेकिन अनेक वचन में कहता है, ये कहता है झूठे मसीह। Can this happen in our world? क्या हमारे संसार में ये हो सकता है? When I was a young boy, जब मैं छोटा लड़का था, I used to watch when we travel by train. If you pass Avadi, you can see on the compound walls a big statement written. और जब भी मैं यहाँ पर आवड़ी से ट्रेन से जाता था तो कंपाउंड वॉल पर एक बहुत बड़े वाक्य को लिखा हुआ देखता था, Christ Branham is coming soon. क्राइस्ट ब्रेनहम बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। So I knew only one false Christ at that time. तो उस समय मैं केवल एक ही झूठे मसीह को जानता था, केवल एक ही व्यक्ति को जानता था। Now Branham was a mightily used servant of God. ब्रेनहम जो है वो तो प्रभु के द्वारा बहुत ही सामर्थी उपयोग किए गए हैं, But at the peak of his ministry, he turned around and declared himself to be Jesus Christ. लेकिन जब उनकी सेवकाई बहुत ऊंचाई पर पहुंची तो उन्होंने मुड़कर खुद को ही यीशु मसीह घोषित कर दिया And he said he's going to come soon again. और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। Many people followed him. बहुत से लोग उनके पीछे चलते हैं, But when I read about this, false Christs will come. लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि झूठे मसीह आएंगे I made a research. तो मैंने इसके बारे में खोज की And then I found out, और फिर मैंने ये पाया right now at this present time, there are at least 16 people who have declared themselves to be Jesus Christ living on this earth right now. अभी इस समय वर्तमान के समय में कम से कम 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं ही यीशु मसीह हूं। They are still alive. वो अभी भी जीवित हैं। I'll give you a few people. चलिए उनमें से कुछ लोगों के नाम बताऊं। Number one, नंबर 1, there is a man by the name of Sergei Torop. सेर्गे तुरत नाम के एक मनुष्य हैं। He calls himself as Vissarion as well. वो अपने आप को विसारियन के भी नाम से पुकारते हैं। He was actually a former police cop in the USSR police department. वो तो पहले यूएसएसआर पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस थे। At the age of 29, 29 साल की उम्र में he says, I got a vision. उन्होंने कहा कि मैंने एक दर्शन पाया And he says, I have been made into the Son of God. और वो कहते हैं कि उस समय मुझे परमेश्वर का पुत्र बना दिया गया। He founded his own church called the Church of the Last Testament. उन्होंने अपना चर्च बनाया और उसका नाम दिया द चर्च ऑफ लास्ट टेस्टामेंट, यानी अंतिम नियम का चर्च। Very interesting. बहुत ही दिलचस्प बात है। Today he is living in Siberia with 2 wives. और आज वो साइबेरिया में रहते हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। But the shocking thing is, he has got 5,000 followers who are staying with him night and day. They left everything and they're staying with him and they worship him as Jesus Christ. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके 5,000 ऐसे चेले हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर दिन रात उन्हीं के साथ में रहते हैं और उन्हें प्रभु यीशु मानकर उनकी सेवा करते हैं। 5,000 people. 5,000 लोग। They sold their property, they left everything, and they're staying with him in his huge camp. और वो अपना सब कुछ, अपनी संपत्ति बेचकर उसके साथ में रहते हैं। एक बहुत बड़े कैंप में वो उसी के साथ में रहते हैं। He's a false Christ. वो तो झूठा मसीह है। The second person, दूसरा व्यक्ति, his name is Apollo Quiboloi. उनका नाम है अपोलो क्यूबोलॉय। Now he is the founder and leader of the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. अब वो तो फाउंडर हैं द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम अबाउ एवरी नेम के। He is actually a pastor. और सच में वो एक पास्टर हैं।
He has his church in Philippines. He's a Filipino. वो फिलिपिनो है और फिलीपींस में उनका चर्च है। Now, अब while he was shining in the ministry, जबकि वो सेवकाई में बहुत ऊंचाई पर थे, तेजो में थे, suddenly one day he declared, अचानक उन्होंने घोषित किया I am Jesus Christ in the flesh. कि मैं तो शरीर में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह हूँ। And people began to believe in him. और लोग उस पर विश्वास करने लगे। Do you know how many followers he has? आप जानते हैं उनके कितने अनुयायी हैं? All over the world, पूरे संसार में around 60 lakh disciples are following him. लगभग 60 लाख चेले उनके अनुयायी उनके पीछे चल रहे हैं। In Philippines alone, there are 40 lakh followers. फिलीपींस में ही वहां पर 40 लाख उनके अनुयायी हैं। In 2005, he declared that from then on, he has become a sinless creature. 2005 से उन्होंने घोषित किया कि तब से आगे वो तो बिल्कुल निष्पाप है, उनमें कोई भी पाप नहीं है। And till today, people believe him that he is Jesus Christ, the Messiah. और आज भी लोग विश्वास करते हैं कि वही यीशु मसीह हैं। Number 3. नंबर 3, The third person's name is Alan John Miller. तीसरे हैं एलन जॉन मिलर He's from Australia. और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। He was formerly a Jehovah Witness preacher. पहले तो ये यहोवा साक्षी के प्रचारक हुआ करते थे He was actually in the IT industry. और ये सच में आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले थे। He resigned his job, उन्होंने नौकरी छोड़ दी and one fine day he said, और फिर एक दिन इन्होंने कहा, I am Jesus Christ. मैं ही यीशु मसीह हूँ। He has a girlfriend who is living with him, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उनके साथ में रहती थी। and he has named her as Mary Magdalene. उन्होंने उनका नाम रखा मेरी मैगडलिन। He says उन्होंने कहा that he actually remembers going through crucifixion 2000 years ago. वो कहते मुझे अभी भी याद है कि 2000 साल पहले क्रूसीकरण में से मैं किस तरह से होकर गया, इस तरह से वो दावा करती हैं। But he says लेकिन वो कहते हैं that crucifixion is not as painful and harrowing as it is described in the Bible. जैसे बाइबल में बताया गया है, वो क्रूसीकरण इतना भयानक और इतना पीड़ादायी, इतना यातनाकारक क्रूसीकरण तो नहीं था। It's not painful. वो दर्द वाला नहीं था। And still today, many thousands are following him. और आज भी हजारों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। The fourth person I want to bring is a person by the name of Alvaro Theus. चौथे व्यक्ति जिनका नाम है एल्वेरो थियस। In the year 1979, 1979 में he declared that he is the reincarnation of Jesus Christ. उन्होंने घोषित किया कि वो प्रभु यीशु मसीह का नया अवतार हैं। Since then, he has traveled to 27 countries declaring that the truth is that he is Jesus Christ. और उसके बाद में वो 27 देशों में यात्रा करते आए हैं और वहां घोषित करते आए हैं कि वही यीशु मसीह हैं। Many people are staying with him. बहुत से लोग उनके साथ में ही रहते हैं। There's another one. His name is Jose Luis the Jesus Miranda. और एक और है जिनका नाम है जोस लुइस द जीसस मिरांडा। Now the interesting thing about this man is अब इस मनुष्य के बारे में दिलचस्प बात तो ये है, he says he is both Jesus Christ and Antichrist both in one. ये कहते हैं कि यीशु मसीह और ख्रिस्त विरोधी ये दोनों व्यक्तित्व उन्हीं एक व्यक्ति में है, यानी वो अकेले ही ये दोनों हैं। He had the number 666 etched, tattooed on his arm. उन्होंने अपने हाथ पर 666 यानी 666 अंक का टैटू बनाया है। He was actually the pastor of a growing church by the name of Growing in Grace Church. वो तो पास्टर थे, ग्रोइंग इन ग्रेस इस नाम के चर्च के यानी बढ़ने वाले चर्च के वो पास्टर थे। It is in Florida, Miami, Florida. जो कि अभी इस समय मियामी फ्लोरिडा में है। He was a very charismatic person who had a tremendous influence on his congregation. और ये तो बहुत ही करिस्मेटिक व्यक्ति थे, अपनी सभा के लोगों पर अद्भुत प्रभाव डालते थे। In 2007, और 2007 में 30 members of his own church, they tattooed their arms with 666 in their arms to please and make their pastor very happy. इनकी कलीसिया के 30 लोगों ने अपने हाथ पर 666 अंक का
टैटू बनाया ताकि वो अपने पास्टर को खुश कर सके। Now he declares अब ये घोषित करते हैं the doctrine of sin and Satan does not exist. कि पाप और शैतान का जो सिद्धांत है वो तो अभी अस्तित्व में नहीं रहा, वो अभी खत्म हो गया है। He says his followers, because they follow him as the true Messiah, they literally can have no sin. अब वो कहते हैं कि उनके अनुयायी जो कि उनके पीछे चलते हैं, सच्चे मसीहा के पीछे चलते हैं, इसलिए वो कभी कोई पाप नहीं कर सकते हैं। This is very shocking, is it not? ये तो चौंकाने वाली बात है ना। I have just brought 5 personalities, मैंने केवल 5 लोगों का नाम बताया but है, there are actually 16 people who have declared themselves as Antichrist who are alive now. लेकिन 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को मसीहा घोषित किया है, वो अभी आज इस समय जिंदा हैं। They call themselves as Christ. वो तो खुद को यीशु मसीह कहते हैं। The prophecy of Jesus Christ is coming true. यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो अभी सच में पूरी हो रही है। We are living in a crowd of false Christs and false prophets. हम तो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता के इतनी बड़ी भीड़ के बीच में खड़े हैं, हम उनके मध्य में हैं। As a church, we need to be cautious of what is happening around us. हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके लिए चर्च के रूप में हमें सावधान रहना होगा। In the last days, Satan will use his agents to deceive people and deflect their attention from the living God. अंतिम दिनों में शैतान अपने एजेंट का उपयोग करेगा ताकि लोगों को भरमाए और जीवित परमेश्वर से उन्हें दूर लेकर जाए। I think one of the reasons why such things spread like wildfire, मैं सोचता हूँ कि एक कारण है जिसके लिए ये सारी चीजें जंगल की आग के जैसे फैल in गई। the Christian world, like every other space, there is something called a celebrity culture that we have not got over with. कि देखिए मसीह संसार में संसारिक लोगों के जैसे सेलिब्रिटी कल्चर यानी लोगों को हम बहुत ऊंचाई पर रख देते हैं, ये जो विचारधारा है इससे हमने निपटा नहीं है। I think many believers, they have not got over the fact that their pastor, the evangelist, people used mightily by God, though they are mighty weapons in the hand of God, they are still human beings. They have not come to that truth. लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके पास्टर या जो एवेंजलिस्ट हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य रीति से उपयोग तो किया है, बहुत से अद्भुत काम उनके द्वारा किए हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य हैं, वो एक साधारण मनुष्य हैं। They consider their pastors and they lift them up in such high pedestals and they put them on a celebrity status, so whatever they declare, they are ready to receive. वो तो अपने पास्टर को इतना ऊंचा मानते हैं, उन्हें मानो ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं कि वो उनके लिए सेलिब्रिटीज होते हैं और वो जो भी कहते हैं वो इन बातों को स्वीकार करते हैं। I think even today there are many servants of God who love the celebrity status. देखिए मैं सोचता हूं कि आज ऐसे बहुत से पास्टर हैं जिन्हें इस तरह के सेलिब्रिटी स्टेटस में रहना बहुत ही पसंद है, उन्हें ये अच्छा लगता है। They love to be treated like celebrities. वो तो पसंद करते हैं कि बड़े सेलिब्रिटी के जैसे उनके साथ में व्यवहार किया जाए। If you come to the early days of the church, अगर आप चर्च के शुरू के दिनों में देखें, there is a story in Acts chapter 14. प्रेरितों के काम अध्याय 14 में हमें एक कहानी बताई गई है। When Paul and Barnabas went to serve in the city of Lystra, जब पौलुस और बरनबास लुस्त्रा के नगर में सेवा के लिए गए, there was an important man sitting in the meeting in which Paul was preaching. पौलुस वहां पर प्रचार कर रहा था और एक कमजोर व्यक्ति सभा में बैठा था And he was intently looking upon और Paul. वो पौलुस की ओर टकटकी लगाए था। And when Paul saw him, he found that he had the faith to receive healing. और पौलुस ने ये देखा कि इसके अंदर अपनी चंगाई पाने के लिए विश्वास है, इस बात को पौलुस ने जान लिया And then he immediately said, "Stand up and be healed." और तुरंत वो उससे कहता है कि ठीक है तुम खड़े हो जाओ और चंगे हो जाओ। What happened? फिर क्या हुआ? The man was impotent who couldn't walk from his birth stood up. ये लंगड़ा व्यक्ति जो कि अपने जन्म से कभी नहीं चला था, वो उठकर खड़ा हो जाता The है whole crowd that was witnessing this were totally taken by shock. और सभी भीड़ के लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से चौंक गए थे। What did they do? उन्होंने क्या किया? They go into the city, they buy garlands, and they come with their animals to sacrifice, considering Paul and Barnabas to be gods who have come down from heaven. तो वो शहर में जाते हैं, वो हार मालाएं सब लेकर आते हैं, जानवरों को लेकर आते हैं
ताकि वो पौलुस और बरनबास के सामने उन्हें बलिदान चढ़ाए। वो सोच रहे थे ये तो हमारे देवता हैं जो हमारे मध्य में आए हैं। They called Paul as Mercury and Barnabas as Jupiter. उन्होंने पौलुस को मर्क्यूरी और बरनबास को जुपिटर कहा। They called them by the Greek gods. उन्होंने अपने ग्रीक देवताओं के नाम उन्हें When दिए। the apostles saw this, जब प्रेरितों ने इसे देखा how did they respond? तो उन्होंने इसके लिए कैसे प्रत्युत्तर दिया? The Bible says, बाइबल कहती है they rent their clothes and ran among the crowd and said, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और दौड़कर वो भीड़ में गए और उन्होंने कहा, we are also men of passions just like you. हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। Very important phrase we need to take care. ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। Though they were mightily used by God, हालांकि प्रभु ने उनका सामर्थ्य उपयोग किया, though they were performing miracles, हालांकि वो चमत्कार कर रहे थे, the apostles never agreed that they were God-like or even with God. प्रेरितों ने कभी इस बात के लिए सहमति नहीं दिखाई कि वो परमेश्वर के जैसे हैं या फिर वो परमेश्वर है। कभी इस तरह से उन्होंने दावा नहीं किया। They did not declare themselves as gods, but they said, we are just ordinary men. उन्होंने कभी इस तरह से घोषणा नहीं की कि हम परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि हम तो साधारण मनुष्य हैं। And they did not allow the people to treat them like gods. और उन्होंने लोगों को अनुमति नहीं दी कि वो उनके साथ में परमेश्वर के जैसे व्यवहार करें। Personally speaking, व्यक्तिगत रूप में अगर मैं कहूं, I am not a fan of pastors being garlanded, pastors being clothed with ponnadai and all of that. I don't like it. देखिए, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि पास्टर का बहुत बड़ा सम्मान किया जाए, उन्हें हार मालाएं पहनाई जाए, उनको बहुत कुछ दिया जाए। मुझे ये पसंद नहीं। The apostles, when the garlands were brought, they said, no, we are not getting it. जब प्रेरितों के सामने वो मालाएं लाई गई तो उन्होंने कहा, नहीं, हम इसे नहीं लेंगे। Today, just an introduction, they give such a big introduction, bigger than Jesus Christ himself to a pastor. और आज तो देखा जाए तो पास्टर का परिचय वो इतने लंबे शब्दों में देते हैं कि यीशु मसीह से भी बढ़कर वो तो उस पास्टर के बारे में ही कहते चले जाते हैं। And there are poems written for the pastor. और पास्टर के लिए कई कविताएं लिखी गई हैं। I am not a fan of that. I think that is something, it's very dangerous. मुझे ये बातें पसंद नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। It is dangerous for the pastor, it is dangerous for the congregation. ये पास्टर के लिए और सभा दोनों के लिए खतरनाक है। Because they fall into the trap thinking that they are somebody. क्योंकि वो इस जाल में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, निश्चय वो कोई बड़े व्यक्ति हैं। And the trap of the believers is they think whatever the pastor says is right. और विश्वासियों के लिए ये ऐसा जाल हो जाता है, वो सोचते हैं जो भी पास्टर ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। I would always say, you see, just because we are preaching from this pulpit, don't just believe it blindly. मैं हमेशा ये कहता हूं, क्योंकि हम लोग इस पुलपिट पर से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए अंधे बनकर आप उस पर विश्वास मत कीजिए। Take the Bible and see for yourself, refer if what we are preaching is aligning with the word of God. आप बाइबल लेकर जांचिए कि हम जो कुछ भी प्रचार कर रहे हैं क्या वो वचन से मेल खाता है या नहीं। If you don't test it, you will get into the temptation of falling a trap to see a servant of God as God-like. अगर आप इसे नहीं जांचेंगे तो निश्चय आप ऐसी परीक्षा में पड़ सकते हैं जहां पर आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर के जैसे समझ ले और ये गलती कर बैठे। Now, because of this, what happens in the last days? People deceive themselves to believe a lie and consider men to be Jesus Christ himself. अब देखिए, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग जो है वो तो भरमाए जाते हैं, वो झूठ पर विश्वास करते हैं और स्वयं वो मनुष्यों को यीशु मसीह समझ बैठते हैं। So the first deception will be deception by false people, namely false Christs and false prophets. यानी पहला जो धोखा है वो तो मनुष्यों के द्वारा धोखा है और वो तो झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता को मानने का धोखा है। I humbly urge every church member, everyone who's listening to my voice or sermon wherever, don't take people by their claims or their face value. मैं हर एक व्यक्ति से बड़ी नम्रता से विनती करता हूं कि जब भी आप किसी तरह से कोई परमेश्वर के दास को सुनते हैं तो आप उनके नाम या उनके चेहरे को देखकर उनकी सारी बातें स्वीकार मत कीजिए। Now, just because they claim that they are a prophet,
Don't just immediately invite and just listen to everything they say. और वो भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं, इसलिए तुरंत आप उन्हें न्योता देकर वो जो कुछ भी कहते हैं उन्हें स्वीकार मत कीजिए। Now, I am not against prophecy. मैं भविष्यवाणी के विरुद्ध में नहीं हूँ, But more than good prophets, false prophets are now increasing in number. क्योंकि अभी इन दिनों में सच्चे भविष्यवक्ता के बजाय झूठे भविष्यवक्ताओं की गिनती बढ़ती चली जा रही है। Now these people go into people's homes. और अब ये लोग लोगों के घर में जाते हैं। Oh, we want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते They हैं, start the prayer. और वो प्रार्थना शुरू करते हैं। Within few minutes, बस कुछ ही मिनटों में God is revealing something to me. परमेश्वर मुझ पर कुछ प्रकट कर रहे हैं। What is your problem in your house? आपके घर में कौन सी समस्या है? Oh, your daughter is not getting married. ओ, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, You are not getting a job. आपको नौकरी नहीं मिल You are रही having है, the sickness. आपको ये बीमारी Do है। you know what is it? जानते हैं ये क्या What है? is the reason? इसका कारण क्या है? Your brother has done some witchcraft against you. आपके भाई ने आपके विरुद्ध में किसी तरह से कोई जादू टोना कर दिया है। ஒழுங்கா இருந்த குடும்பங்க, நல்லா இருந்தாங்க ஒழுங்கா, இவனுங்க வந்து போட்ட பொய்யில குடும்பமே ரெண்டா போயிடும். The family splits. पूरा परिवार इसके कारण बिखर जाता है। The brother against the sister against the brother. भाई बहन के विरुद्ध में और बहन भाई के विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं। And these people are so ignorant. Hey, just a person, a stranger comes inside and tells something, you believe it as the truth, and then you break off good relationships. और ये लोग तो इतने अनजान होते हैं कि देखिए कोई अजनबी आकर उन्हें ये बता रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने संबंधों को तोड़ देते हैं। इतने साल के अच्छे पुराने संबंधों को ये तोड़ देते हैं। And as these things get complicated, और जैसे ये सारी बातें और उलझती जाती हैं, their faith gets destroyed. उनका विश्वास नाश हो जाता है। The second thing that will happen in the last days, अंतिम दिनों में जो दूसरी बात होने वाली है वो ये है the believers will be deceived by false performance. कि विश्वासी जो लोग हैं वो झूठे कामों के द्वारा भरमाए जाएंगे। Matthew 24:24 again. मत्ती 24:24 को हम यहाँ पर फिर से Jesus देखते said, हैं। for false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। Now what will these false Christs and false prophets do? अब ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे? Not just ordinary signs and miracles. केवल साधारण से चिन्ह चमत्कार नहीं, Bible says they will perform great signs and miracles. बाइबल कहती है वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाते जाएंगे। Insomuch the elect themselves can be defrauded. और वो तो इतने बड़े और अद्भुत काम दिखाएंगे कि चुने हुओं को भी वो भरमा दे। I tell you, the last days, people will be longing more for witnessing miracles than to hear God's word. मैं आपको बताऊं कि अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर का वचन सुनने के बजाय चमत्कारों को होते हुए देखना ज्यादा पसंद करेंगे। That is why Jesus said, when somebody says the Christ is here, Christ is there, don't go, don't follow them. और इसलिए यीशु ने कहा जब कोई ये कहे कि मसीह यहाँ पर है वहां पर है तो उनके पीछे मत जाना। The Bible says the best way to please God is by having faith on Him. बाइबल कहती परमेश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर विश्वास करे। The people who believe Him are better than people who believe Him by seeing. जो लोग देखकर विश्वास करते हैं उनसे अच्छा है कि उसे बिना देखे विश्वास करे। But because people are crazy about witnessing wonders and miracles, लेकिन लोग इस बात के पीछे पागल जैसे घूमते हैं कि वो चिन्ह और चमत्कारों अद्भुत कामों को होते हुए देखें, because that is very attractive to them. क्योंकि ये तो उन्हें बहुत ही आकर्षित करने वाला दिखाई देता है। The increase of false Christs and false prophets performing mighty miracles and signs to deceive the gullible will increase in the last days. तो अंतिम दिनों में बड़े चिन्ह चमत्कार करके झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता यहाँ तक कि जो विश्वास में मजबूत हैं उन लोगों को भी भरमा देंगे। The photograph I put in my title is very intriguing. मेरे शीर्षक में मैंने यहाँ पर जो फोटो रखा है ये तो बहुत ही दिलचस्प है। I want you to look at that photograph. मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरा देखिए। This is a real photograph. ये एक असली फोटो है। There is a story behind this photograph. इस फोटो के पीछे एक कहानी है। There is a very large congregation, a huge church in Africa. अफ्रीका में एक बहुत बड़ा चर्च है जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं। It is led by a pastor who is so-called prophet. इसकी अगुवाई एक पास्टर करते हैं जो कि नामधारी भविष्यवक्ता हैं। Now one fine morning on a Sunday,
as the worship is going on, somebody says, there is a dead man in a coffin who is brought to be prayed for. अब एक रविवार के दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो एक मनुष्य ने कहा कि कफन में एक मरा हुआ मुर्दा है जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए हम उसे यहाँ पर लाए हैं. And the pastor is called to pray for that dead man to come up. और पास्टर को बुलाया गया कि वो वहां पर प्रार्थना करे और उस मुर्दे को जिलाए, यानी मुर्दे को जिलाने के लिए पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया. So the pastor goes out और फिर इस तरह से पास्टर वहां पर जाते हैं and lays his hand over the dead body. और वो उस मृतदेह पर अपने हाथ रखते हैं. All the church members, thousands and thousands of people pray. और चर्च के सभी सदस्य यानी हजारों हजार लोग प्रार्थना करते हैं. And as this pastor is praying, और जैसे ये पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, the man wakes up and he gets up and sits alive. तो ये मनुष्य जाग जाता है, उठकर बैठ जाता है, जीवित हो जाता है. Everybody is surprised. और सभी लोग पूरी तरह से चकित हो जाते हैं. The whole church is thrilled. और पूरा चर्च जो है वो रोमांच से भर जाता है. The pastor lifts him out of the coffin and asks him to walk into the church. पास्टर उस आदमी को कफन में से हाथ पकड़कर बाहर आने के लिए कहते हैं कि चलो चर्च में आओ. Holds his hand and brings him to the pulpit. उसका हाथ पकड़कर वो उसे पुलपिट पर लेकर आते हैं. The whole church is dancing in joy. और पूरा चर्च यहाँ पर बड़े आनंद से नाचने लगता है. And then the pastor gives him food for him to eat because he claims he did not eat for the past 3 days. और पास्टर ने उसे भोजन करने के लिए कुछ भोजन वस्तु दी क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से मैंने कोई भोजन नहीं किया है. So he gives him food. तो वो उन्हें भोजन देते हैं. Pours water on his head and does all of this. और उसके सिर पर पानी उंडेलते हैं और ये सब कुछ करते हैं. And then he goes on stage. और फिर वो मंच पर जाते हैं. And declares himself by his name. I am so and so. और फिर वो उस नाम से घोषित करते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ. And the whole church is clapping. और पूरा चर्च ताली बजाता है. I was watching it. मैं ये देख रहा था. I was watching it live. मैं इसे लाइव देख रहा था. And in a matter of few hours, millions saw that. और बस कुछ ही घंटों के समय के बीच लाखों करोड़ों लोगों ने इसे देखा. But 3 days later, something started to surface. लेकिन 3 दिनों के बाद में कुछ और ही बात पता चलती है. What is it? और वो क्या है? They began to claim that this so-called dead man was not dead. वो इस तरह से दावा करने लगे कि ये जो व्यक्ति खुद को मुर्दा बता रहा था, ये सच में मरा ही नहीं था. They actually hired a van. They bought a coffin. They hired this man and asked him to act like a dead man, get up like a dead man, come into the church like a dead man. He was fully paid for. उन्होंने इस व्यक्ति को पैसा दिया था और उन्होंने कार किराए पे ली थी. वो कफन भी लेकर आए थे. इस व्यक्ति से कहा था कि ये मुर्दे जैसे पड़े रहे और फिर उठ खड़े हो और चर्च में चलकर आए. The boss of that boy, who actually for whom he was working 3 days ago, claimed on TV, he was working for me 3 days ago. He asked for 3 days leave. Then I saw on TV he's coming back alive. यानी ये लड़का जिस जगह पर काम कर रहा था, उसके बॉस ने इसे टीवी पर देखा और उसने कहा कि इस लड़के ने मुझसे 3 दिन की छुट्टी मांगी और ये 3 दिन छुट्टी पर रहा और मैंने इसे टीवी पर देखा और ये कह रहा है कि ये तो मुर्दों में से जी उठा है. See, can you believe that? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? In the last days, अंतिम दिनों में false prophets will rise and they will deceive people with great wonders and miracles. अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो तो लोगों को पूरी तरह से भरमाएंगे. Satan, who knows how well to stage questionable miracles, he will use it and draw people from God and turn the attention on men. शैतान ऐसे झूठे चमत्कार करके लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर उस ध्यान को वो मनुष्यों पर लेकर आने में माहिर है. Many people, when they see miracles and wonders, बहुत से लोग जब वो चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, they don't ask some basic questions. वो तो बुनियादी सवाल भी नहीं पूछते हैं. Is there a biblical precedent for such a kind of event? इस तरह की जो घटना हुई, क्या इसके लिए बाइबल में से कोई सबूत है? Is this miracle giving glory to God or to the preacher? क्या ये चमत्कार परमेश्वर को महिमा दे रहा है या फिर प्रचारक को? Is this manifestation leading people to repentance or salvation? ये जो प्रकटीकरण है, क्या ये लोगों को पश्चाताप और उद्धार की ओर लेकर आ रहा है या नहीं? Is it just a show or is it real? क्या ये सच में एक दिखावा है या फिर ये वास्तविकता है?
We blindly believe. वो तो अंधे होकर विश्वास करते हैं। And these are the days of deception. और ये तो धोखा खाने के दिन हैं। Today, आज the varieties of claimed miracles are really numerous beyond number. आज तो जिन चमत्कारों का दावा किया जाता है वो तो संख्या में अगणित हो चुके हैं। Now there is something new which is coming up. It's called miracle money. अब देखिए कुछ और एक नई बात हो रही है जिसे चमत्कारी पैसा कहते हैं। As you are worshipping, suddenly the money is added in your purse. जैसे कि आप आराधना कर रहे हैं उस समय अचानक आपके पर्स में या आपके बटुए में अचानक पैसा आ जाता है। And suddenly you will have a bank balance. There is a message coming to you saying your 8,000 rupees, 10,000 rupees is credited to your account. और अचानक आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। आपको एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में 8,000 या 10,000 रुपए डाले गए हैं। Oh, miracle money, miracle money. ओ चमत्कारी पैसा, चमत्कार से आया पैसा। And now there's a new miracle they say. It's called angel's feathers. अब तो एक नया चमत्कार आ गया जिसे कहते हैं स्वर्गदूतों के पंख। What happens when the worship is going on? क्या होता है जब आराधना चल रही है? One man in Chennai who is very popular, चेन्नई के एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही विख्यात हैं। he goes on TV and says, वो तो टीवी पर आकर इस तरह से कह रहे हैं, as his conference was going on, जैसे उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था, suddenly when they were worshipping, जबकि वो आराधना कर रहे थे, they found feathers of angels' wings and they take it, oh, angels' wings feathers. तो उन्होंने अचानक वहां पर स्वर्गदूतों के पंख को देखा और उन्होंने कहा देखो ये स्वर्गदूतों का पंख है। I think the angel was very weak. The feathers started to shed. मुझे लगता है कि वो स्वर्गदूत बहुत ही कमजोर हो गया होगा, इसलिए उसके पंख झड़ने लग गए हैं। And the Bible says angels are not physical beings, they are ministering spirits. और बाइबल ये भी कहती है कि स्वर्गदूत कोई शारीरिक नहीं है, वो तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। பணிவிடை ஆவிகள். सेवा करने वाली आत्माएं। And where come these feathers are coming from? तो फिर ये जो पंख है ये कहां से आ गए हैं? Now there is a new one. They say when you are worshiping, you get gold dust falling अब on तो you. बिल्कुल नई बात आ गई है। वो कहते हैं कि जब आप आराधना करते हैं तो आप पर यानी सोने का पाउडर आप पर गिरता है। One pastor, as he is preaching, oil is pouring out from his hands. और जब एक पास्टर प्रचार कर रहे थे उनके हाथों से तेल बह रहा था। Oh, the people are mesmerized. लोग तो पूरी तरह से सम्मोहित हो गए थे। It's called miracle oil. इसे चमत्कारी तेल कहते हैं। One more new one. It is gold teeth. और एक और नई बात है और वो है सोने का दांत। What is it? ये क्या है? I came to worship. I did not have 3 teeth. There was extracted 3 teeth. मैं आराधना करने के लिए आया था, मेरे 3 दांत नहीं थे, मेरे 3 दांत निकाले गए हैं। And as I am worshiping, और जैसे मैं आराधना कर रहा suddenly था, there is a miracle. अचानक चमत्कार हो गया। When I go and see in the mirror, और जब मैंने जाकर आईने में देखा, all the extracted tooth is replaced by gold tooth. जितने भी दांत मैंने निकाले थे उनकी जगह पर अभी सोने के दांत आ गए हैं। I was thinking, मैं ये सोच रहा था, oh, it is miracle from God. ओ ये परमेश्वर की ओर से चमत्कार है। God would have given them natural teeth, back again, natural teeth replaced. परमेश्वर ने जो दांत निकाले गए हैं उसकी जगह पर असली दांत यानी जो स्वाभाविक दांत हैं वो दिए होते। தங்கப்பல் கொடுக்கறாராம் பாவம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. असली दांत परमेश्वर ने दिए होते। There's one more, you will really laugh when I say this. एक और ऐसी बात है जिसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगे। You know what is that? आप जानते हैं वो क्या है? When you worship, you have miracle weight loss. जब आप आराधना करते हैं तो चमत्कारी रीति से अचानक आपका वजन कम हो जाता है। चमत्कारी रीति से बिना कुछ किए अचानक वजन घट जाता है। And miracle weight gain. और अचानक चमत्कारी रीति से वजन बढ़ जाता है। जो दुबले पतले उनका वजन बढ़ जाता है। If only I had that gift, अगर सच में मेरे पास ये वरदान होता, I will be very popular here. तो मैं यहां पर बहुत ही विख्यात हो जाता। ஆராதனை பண்ணா பேண்ட் லூஸ் ஆயிடுதான், பேண்ட் டைட் ஆயிடுதான். என்னையா? See, I was thinking Sai Baba was great, but now our Christian fellows, they are exceeding Sai Baba. यानी आराधना के समय मोटे लोगों का वजन अचानक घट जाता है, उनकी पैंट ढीली हो जाती है, या दुबले पतले आदमी का वजन बढ़ जाता है। मैं सोच रहा था साईं बाबा बहुत चमत्कार करते थे, लेकिन मसीह लोग तो अभी उससे भी बढ़ गए हैं। Gold teeth, gold dust. After some time, tea dust, coffee dust. I don't know what is going to come.
सोने के दांत, सोने की धूल, उसके बाद में पता नहीं क्या चाय और कॉफी की धूल आएगी। And people believe it. और लोग इस पर विश्वास करते हैं। People believe it. लोग इस पर विश्वास करते हैं। The Bible says in the last days they will do all these signs and miracles, and even the elect will get defrauded. बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे अद्भुत काम वो करेंगे और हो सके तो चुने हुए लोगों को भी वो भरमा देंगे। Some of you can contend with me. शायद आप में से कुछ लोग मेरे साथ सहमत होंगे। You can say, Pastor, I have seen it with my eyes. शायद आप कहें कि हाँ पास्टर जी, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। I have seen it, Pastor. मैंने इसे देखा है पास्टर जी। I saw miracle money in that purse. मैंने चमत्कारी पैसा मेरे पर्स में आते हुए देखा है। What is your explanation? और इसके लिए आपका विवरण क्या है? Is there something in the Bible about this? क्या बाइबल में ऐसा कुछ हुआ है? If you come to Exodus chapter 7, अगर आप निर्गमन अध्याय 7 में देखें, when the Lord sent Moses to meet Pharaoh, जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन से मिलने के लिए भेजा, he gave him a rod in his hand and he sent him and said, let my people go. उसने उसके हाथ में लाठी दी और उसे भेजा और कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। And when Pharaoh said, I don't know who that God is, I'm not going to send these people. और फिरौन ने कहा मुझे पता नहीं वो परमेश्वर कौन है, मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। Moses put his staff down. तो मूसा ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। The Bible says it turned into a serpent. बाइबल कहती है कि वो सर्प में बदल गई। Now, अब the Egyptian king Pharaoh calls his magicians. मिस्री राजा फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है। He says, look at this. Can you do something like this? और वो कहता है इसे देखो, क्या तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो? तुम इसे करके दिखाओ। The Bible says they put their staffs down and they also became serpents. बाइबल कहती है कि उन्होंने भी अपनी लाठी नीचे फेंकी और वो उनकी जो लाठी थी वो भी सर्प बन गई। The story ended in a different way. लेकिन इस कहानी का अंत बिल्कुल अलग तरह से हुआ। The serpent of Moses, it swallowed up all the serpents of the magicians. मूसा की लाठी का जो सांप था उसने जादूगरों की लाठी के सारे सांपों को निगल लिया। But the truth of the matter is, लेकिन इस बात की सच्चाई तो ये है, the magicians of Egypt were able to duplicate, replicate the same miracle that Moses did. कि मिस्र के जो जादूगर थे वो उसी चमत्कार को कर सके या उसी चमत्कार की नकल कर सके जो कि मूसा ने वहां पर किया था। By the power of the devil, they could actually stage a miracle to deceive Pharaoh. शत्रु यानी शैतान की सामर्थ के द्वारा फिरौन को भरमाने के लिए वो भी वहां पर चमत्कार कर पाए। Now, if you look at the 10 plagues, अगर आप 10 मरियों को देखें, whatever Moses did, the magicians of Egypt also did. जो कुछ भी मूसा ने किया वही सब कुछ मिस्र के जो जादूगर थे उन्होंने भी किया। But there was a limit. लेकिन उनकी एक सीमा थी। After a level, they said, we cannot do anything. This is the finger of God. एक स्तर के बाद में उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर की उंगली के द्वारा ही हो रहा है। So, इसलिए you must understand that the devil has power to execute miracles. आपको ये समझना होगा कि शैतान के पास में इतनी सामर्थ तो है कि वो किसी न किसी तरह से कोई चमत्कार कर सके। He has got powers to do it. उसने ऐसे चमत्कार के लिए सामर्थ पाई है। He is a deceiver. He will do it. वो तो भरमाने वाला है, वो इसे करेगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है false Christs and false prophets will do great miracles and signs and deceive the elect. कि ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुए लोगों को भरमा दें। The last days, then apostasy will take so many people from the faith, believing in all these miracles. अंतिम दिनों में इस तरह की भरमाने वाली बातें बहुत से लोगों को उनके विश्वास से हटा देगी, दूर कर देगी। The third sign. और तीसरा चिन्ह है, What way will this deception happen? ये भरमाया जाना किस तरह से होगा? First one, deception by false people. सबसे पहले झूठे लोगों के द्वारा भरमाया जाना होगा। Number two, by false performance. दूसरी बात, झूठे कामों के द्वारा भरमाया जाना होगा। Third one, नंबर 3, he will deceive the people of God by false preaching. कि वो परमेश्वर के लोगों को झूठे प्रचार के द्वारा भरमाएगा। You can call it false doctrines as well. आप इसे झूठे सिद्धांत भी कह सकते हैं। You can turn to 1 Timothy 4, the first 3 verses. आप पहला तिमोथियुस अध्याय 4 और इसके पहले 3 वचन देखिए। We will read the first verse. आइए पहले वचन को पढ़ते हैं। Now the Spirit explicitly says that in latter times
some will depart from the faith, paying attention to deceitful spirits and the teachings of demons through the hypocrisy of liars whose consciences are seared. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वो उन बातों पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। What will happen? क्या होगा? They will give ear to the deceitful spirits and the doctrines of demons. वो तो भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं के जो सिद्धांत है उन्हें सुनेंगे और उन्हें मानेंगे। So, when you know that there is a doctrine of Christ, there is also a doctrine of demons. तो आप इस बात को जान लीजिए कि मसीह का सिद्धांत है और साथ साथ में दुष्टात्माओं का भी सिद्धांत अस्तित्व में है। How will the doctrine of demons be? दुष्टात्माओं का सिद्धांत कैसे होगा? It will just be opposite to what God said. परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा ये तो बिल्कुल उसका उल्टा होगा। To make it very short, चलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। when God told Eve to not eat a particular fruit, Satan will say, you can eat that fruit. जब परमेश्वर ने हव्वा से कहा कि तुम इस फल को नहीं खाना, तो शैतान इस तरह से कहेगा कि हाँ तुम इस फल को खा सकते हो। That is the doctrine of demons. ये दुष्टात्माओं का Two सिद्धांत है। examples are given in the next two verses. अगले 2 वचन में इसके 2 उदाहरण दिए What is हैं। the doctrine? ये सिद्धांत क्या है? The doctrine will forbid people to marry. ये जो सिद्धांत है ये तो लोगों को विवाह करने से रोकेगा। Don't marry. विवाह मत करना। Being unmarried is a higher state of spirituality. अविवाहित रहना ये तो आत्मिकता का सबसे ऊंचा स्तर है। I'm not saying this, the Bible says it's a doctrine of demons. मैं ये नहीं कह रहा, बाइबल कहती है दुष्टात्माओं का सिद्धांत है। And the second one is, और दूसरा है what God has given as food, they will say, don't eat that food. परमेश्वर ने हमें जो भोजन दिया है वो कहेंगे कि तुम इस भोजन को नहीं खाना। You know, there is a growing movement in Christian world where they promote vegetarianism. इन दिनों में देखिए मसीह संसार में इस तरह का चलन बढ़ते चले जा रहा है जहां पर वो शाकाहारी होने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। They say if you are eating meat, then you are under curse. If you are eating vegetables and you are a vegetarian, you are actually experiencing the state of Adam before sin. वो कह रहे हैं कि अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आप मांस मटन खाते हैं तो आप श्राप में हैं, लेकिन अगर आप साग सब्जी खाने वाले हैं, आप शाकाहारी हैं, तो फिर आप आदम ने पाप करने के पहले जो दशा में वो था आप उसी दशा में आ गए हो। அப்போ வெஜிடேரியன்லாம் ரொம்ப பரிசுத்தம், நான் வெஜிடேரியன்லாம் பாவி. वेजिटेरियन तो अच्छे है, Doctrine, இது ஒரு doctrine. नॉन वेजिटेरियन तो पापी है, ये सिद्धांत The है। Bible says in the last days they will seduce you with doctrines. बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में वो सिद्धांतों के द्वारा आपको भरमाएंगे। In 1 John chapter 2 verse 22 to 23, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 22 और 23 में the Bible says, who is the liar if not the one who denies that Jesus is the Messiah? This is the Antichrist, the one who denies the Father and the Son. No one who denies the Son can have the Father. He who confesses the Son has the Father as well. झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। What does it talk about? ये किस बारे में कह रहा है? In the last days, अंतिम दिनों में there will be a doctrine preached. ऐसा सिद्धांत प्रचार किया जाएगा। What is the doctrine? वो सिद्धांत क्या है? Jesus is not the Messiah. कि यीशु मसीहा नहीं है, Jesus is not resurrected. कि यीशु जी नहीं उठा, Jesus did not do all these miracles. यीशु ने ये सारे चमत्कार नहीं किए। These are not really the words of Jesus. There are some mistakes in the Bible. यीशु ने सच में ये नहीं कहा है, यानी बाइबल में कुछ न कुछ गलतियां हैं, And therefore you should not believe it by word. और इसलिए एक एक शब्द पर आपको विश्वास नहीं करना है। Now there are some things it's not culturally applicable, so throw it out. अब ऐसी कुछ चीजें हैं जो पारंपरिक रीति से उपयोगी हो सकती है, बाकी आप चीजों को निकाल कर ऐसे फेंक दीजिए। And there is only one God. केवल एक ही परमेश्वर है, All religions are the same. और सारे जो धर्म है वो एक ही जैसे हैं। And therefore the Christian God, the Muslim God, the Hindu God, everyone is the same. और इसलिए मसीह लोगों का परमेश्वर, हिंदू मुसलमानों का परमेश्वर सब एक ही है। We are all preaching the same thing. हम एक ही बात का प्रचार कर रहे We हैं, are all preaching love.
हम प्रेम का प्रचार कर रहे We are हैं, all preaching good values, हम अच्छे मूल्यों का प्रचार कर रहे हैं, and therefore all of them are the same. इसलिए वो सब एक ही हैं। I tell you, this is not going to come from outside, it's going to come from inside. मैं आपको बताऊं, ये बाहर से नहीं आएगा लेकिन भीतर से आएगा, Leaders of different faiths pray together. कि अलग अलग विश्वास के जो अगुवे हैं वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। And what do they say? और वो क्या कहेंगे? We are all worshipping the same God. हम सब एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, No difference. कोई फर्क नहीं है, And therefore we can all pray together. और इसलिए हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। Do you know, in America, some churches, they start with readings from Quran. आप जानते हैं अमेरिका में कुछ चर्च जो हैं वो तो कुरान पढ़कर अपनी चर्च की सभा की शुरुआत करती हैं। What is their argument? उनकी बहस क्या है? Oh, there are good things in every good book. देखिए, हर एक अच्छी किताब में अच्छी बातें तो हैं ही, And therefore you can use it. इसलिए उसका उपयोग कर सकते In the हैं। last days, these doctrines of demons will come in, sir, and say, everything is the same. अंतिम दिनों में दुष्टात्मा के ये सारे सिद्धांत आएंगे और कहेंगे सब कुछ एक ही है, एक ही है, Only the name is different. God is the same. बस उसका नाम अलग है लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। Bible does not say that. बाइबल ये नहीं कहती है, But these people will teach such doctrine. लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सिद्धांत सिखाएंगे। Do you know in America there's a new religion? आप जानते हैं अमेरिका में एक नई आस्था आ गई है। Do you know what is that? जानते हैं वो क्या है? We know a religion called Christianity. We know a religion called Islam. हम मसीहत नाम के धर्म को जानते हैं, इस्लाम नाम के धर्म को जानते हैं। Now they've invented a religion called Chrislam. अब उन्होंने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम है क्रिस्लाम, यानी मसीहत और इस्लाम को जोड़ दिया है। And the amazing thing is, और अद्भुत बात तो ये है, one of the pastors with the largest churches in America, he speaks in an Islamic conference. अमेरिका के सबसे बड़े चर्च के एक पास्टर वहां पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रचार करते हैं, वहां पर वो संदेश देते हैं। He prays before the president. वो प्रेसिडेंट के सामने प्रार्थना करते हैं। You know in whose name? आप जानते हैं किसके नाम में? Not in Jesus' name. यीशु के नाम में नहीं, In the name of Isa. वो कहते हैं ईसा के नाम में हम प्रार्थना करती हैं। What is Isa? ईसा क्या है? Isa is the prophet Jesus for Muslims. And who is not God? Who is not God? He's just a prophet. मुसलमान लोगों के लिए ईसा एक भविष्यवक्ता है, वो एक भविष्यवक्ता है, वो उनके लिए परमेश्वर नहीं है। He never rose again. वो कभी जी नहीं उठे, He never died on the cross. वो क्रूस पर नहीं मरे, That is Isa. वो है ईसा। And the world's largest church pastor prays in the name of Isa. और संसार के सबसे बड़े चर्च के पास्टर ऐसे ईसा के नाम से प्रार्थना करते हैं, ईसा के नाम में। What do you see there? आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? In the last days, the doctrines of demons will capture the church. अंतिम दिनों में दुष्टात्मा के सिद्धांत कलीसिया को जकड़ लेंगे। They will sell the truth and they will go for a lie. वो सच्चाई को बेच देंगे और झूठ को ले लेंगे। It's catching up everywhere. ये तो हर जगह भी फैलते चले जा रहा है। When I looked at doctrines, जब मैं सिद्धांतों को देखता हूँ, I categorized them under 3 heads. मैं 3 विभागों में उन्हें बांटता So हूँ you can understand them better. ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से From the समझें। root of the problem, I categorized them under 3 heads. जड़ से देखा जाए तो मैं इन्हें 3 भागों में विभाजित करता हूँ। The first category is what I call the stretched doctrines. इसमें सबसे पहला भाग ये है जिसे मैं कहता हूँ खींचतान कर रखा गया सिद्धांत, Stretched doctrine. यानी इसे खींच कर ताना गया सिद्धांत है। What is that? वो क्या है? What the Bible says is one thing, but they will stretch it to limits which the Bible does not intend at all, and they give a new meaning and a new twist, and they will bring up a doctrine. जो कुछ भी बाइबल में कहा है वो उसे लेते हैं और उसे इस सीमा तक खींचते हैं, तानते हैं कि बाइबल ने उसके बारे में उस तरीके से कहा ही नहीं, और वो इस तरह से एक नया सिद्धांत बना लेते हैं। Now there is a pastor in Chennai, चेन्नई में एक पास्टर हैं and he has a doctrine. और उनका एक सिद्धांत है। What is the doctrine? और वो सिद्धांत क्या है? No death. कोई मृत्यु नहीं है। What is that? For believers, no death. वो क्या है? विश्वासियों के लिए कोई मृत्यु नहीं है। So somebody asks him, यानी किसी ने उनसे ये पूछा,
Then what about the verse, the dead in Christ will rise first? What is that? तो ये वचन क्या है जो कहता है कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे? Oh, what is that? Then you say no death. तो आप कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं, तो ये क्या है? What is his answer? तो उनका जवाब क्या था? If you don't believe in death, if you don't like to die, you will not die. अगर आप मृत्यु पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं, तो निश्चय आप नहीं मरेंगे, यानी उस समय आप मृत्यु नहीं पाएंगे। My question is, मेरा सवाल ये है, who in the world likes to die? इस संसार में कौन है जो मरना पसंद करता है? Ask a person who is struggling at 90 years old, do you want to die? He says no. आप उस व्यक्ति से पूछिए जो 90 साल का है कि क्या आप मरना चाहते हैं? I want to attend my granddaughter's wedding. वो कहेंगे नहीं, मैं अपनी नाती या अपनी पोती की शादी में रहना चाहता हूं। There is one more doctrine. एक और सिद्धांत है। In America, there are churches. अमेरिका में ऐसे चर्च हैं। Do you know what they do in the service? आप जानते हैं वो सभा में क्या करते हैं? Just like we bring Bibles, they bring some boxes. जैसे हम बाइबल लेकर आते हैं, वैसे ही वो कुछ बक्से लेकर आते हैं। What is there in the boxes? और उन बक्सों में क्या है? Live snakes, poisonous snakes. जिंदा जहरीले सांप लेकर आते हैं। And what they will do? और वो क्या करते हैं? When the worship is going on, जब आराधना शुरू होती they'll है, take out the snakes वो सांप को निकालते हैं and they will worship with the snakes. और सांपों के साथ में वो आराधना करते हैं। What craziness! ये कितना पागलपन है। And what is the explanation? और इसके पीछे उनका विवरण क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe in me, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, they will take serpents. तो वो सांपों को उठा लेंगे। தூக்கிட்டாங்க உடனே பாம்பை इसलिए सांपों को उठाकर हैं। சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள். सांपों को उठा लेंगे, इस तरह से यीशु ने कहा तो हम उठा रहे हैं। Now what happened in that service? अब देखिए उस सभा में क्या होता है, उस सभा में वो क्या करते हैं। The snake bit the pastor right there in the service. सभा में जो सांप है वो पास्टर को काट लेता है And he died. और वो मर जाते हैं। His son who followed him, उनका बेटा जो उनके पीछे उनके पदचिन्हों पर चलता है, he takes the snake in the service. वो सभा में सांप को लेकर जाता है It bites him and he dies. और वो सांप उसे भी काट लेता है और वो भी मर जाता है। You see how Satan plays the trick and tries to break people's faith? देखिए शैतान कैसे युक्ति करके लोगों के विश्वास को तोड़ देना चाहता है। The first one is stretched doctrines. सबसे पहला है खींचतान कर रखे गए सिद्धांत। The second one is I will call as strange doctrines. दूसरा है जिसे मैं कहूंगा अजीब से सिद्धांत। விகற்பமான உபதேசங்கள், things you have never heard, thought or imagined become doctrines. ऐसी बातें जिसके बारे में न कभी सोचा न कल्पना की, अब वो सिद्धांत बन बैठे हैं। Be very careful when somebody talks about anointing and all that. Be very careful. जब कोई अभिषेक के बारे में इसके उसके बारे में बातें करता है तो आप सावधान रहिए, Because these days anointing is given a new flavor and twist which is so strange. क्योंकि इन दिनों में अभिषेक को एक ऐसा ही नई मोड़ दे दी गई है कि जो कि बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। There is a pastor in Africa अफ्रीका में एक पास्टर है and he says there is a special anointing coming on his people. कि उनके लोगों के ऊपर एक विशेष अभिषेक आ रहा है। What is that anointing? और वो अभिषेक क्या है? It says that during the time of Nebuchadnezzar in Babylon, when he was puffed up in pride, the Lord made him to eat grass like an animal. वो कहते हैं कि जब नबूकदनेस्सर बेबीलोन में घमंड से भर गया था तो परमेश्वर ने उसे पशु के जैसे घास चरने दिया। He says there's an anointing for eating grass. वो कहते हैं घास खाने के लिए अभिषेक है। And all the believers leave the church and they literally go on the floor and they eat grass. और सारे विश्वासी चर्च से बाहर निकलकर वहां पर मैदान में जाकर असल में वो घास खाते हैं। Why? क्यों? They're becoming humble. क्योंकि वो नम्र हो रहे हैं। There is one evangelist in Chennai. चेन्नई में एक इवेंजलिस्ट हैं। He says he's got an anointing. वो कहते हैं कि उन पर एक अभिषेक है। When the people are worshipping, जब लोग आराधना करते हैं, when they are anointed, जब वो अभिषेक में होते हैं, he passes buckets. तो वो बकेट लोगों को देना शुरू कर देते हैं। He passes buckets. He gives buckets. वो बकेट्स देना शुरू करते हैं। What for? किस लिए? To vomit. कि वो उसमें उल्टियां करें। Why? क्यों? All the evil inside you is coming out. कि आपके अंदर जितनी भी बुराई है वो सब बाहर आ रही है। And people vomit. और लोग सच में उल्टियां करते हैं। They vomit. वो उसमें उल्टियां करते हैं। There is something called a barking anointing. They say barking like an animal. और एक और है जिसे कहते हैं भौंकने वाला अभिषेक, जानवर के जैसे भौंकते हैं। What is that barking?
ये भौंकना क्या है? All your animal habits are all coming out. आपकी सारी जानवरों की जो आदतें हैं अभी निकल रही हैं, And people bark. और लोग सच में भौंकते भी हैं। And there is one more anointing called drunk in the spirit. और एक और अभिषेक है जिसे कहते हैं आत्मा में मतवाले होना, जैसे मानो शराब पी ली है। So, the moment you get anointed, यानी जिस पल आपको यह अभिषेक मिलता है उसी पल you bump on somebody like a drunk man. आप किसी शराबी के जैसे किसी से जाकर टकराते हैं, And that is the anointing. और वो तो अभिषेक है। There is one more anointing called laughter anointing. एक और अभिषेक है जिसे हंसी का अभिषेक कहते हैं। Holy laughter. ये तो पवित्र हंसी है। Don't laugh because in our own city there are pastors who are doing this. आप हंसिए मत, क्योंकि हमारे खुद के शहर में ऐसे पास्टर हैं जो इस तरह से करते जा रहे हैं। हाँ। Pastor is laughing like a madman hysterically, seeing that another person starts to laugh. पास्टर भी ऐसे ही पागल जैसे हंसते चले जाते हैं और उन्हें देखकर दूसरे लोग हंसने लगते हैं। He keeps the hand on them and laughs. वो उन पर हाथ रखते हैं और वो भी हंसने लगते हैं, और ये पास्टर भी हंसते चले जाते हैं। What is the scripture for this? और इसके लिए उनके पास में कौन सा वचन है? It is the oil of gladness coming on you. ये तो आनंद का तेल है जो आप पर आ रहा है। Oil of gladness. आनंद का तेल है, हर्ष रूपी तेल। I have got at least 13 varieties. I don't want to say everything and really confuse you. मैंने 13 विविधता आपको बताई है। मैं सब कुछ बताकर आपको गड़बड़ी में लाना नहीं चाहता हूं। Be watchful of the doctrine in the last days. अंतिम दिनों के सिद्धांत के बारे में सचेत रहिए। Strange doctrines. ये तो अजीब से सिद्धांत होंगे। There is one more doctrine. Oh my God, this is very popular all around the world. एक और सिद्धांत है, मैं तो आपको बताऊं, ये पूरे संसार में बहुत ही विख्यात है। What is that? वो क्या है? Slain in the spirit. आत्मा में नीचे गिर जाना। What is it? ये क्या है? The pastor puts his hand on you, यानी पास्टर अपना हाथ आप पर रखते हैं immediately you will fall down. और तुरंत आप नीचे गिर जाते हैं। That is slain in the spirit. ये तो आत्मा में नीचे गिरना है। I went to Australia first time. मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया I गया didn't था। know about all this. मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। I preached in a meeting. मैंने एक सभा में प्रचार किया, After the meeting was over, और सभा खत्म होने के बाद में there was a very plump lady, white lady who came for prayer. एक हट्टी कट्टी गोरी महिला प्रार्थना करवाने के लिए सामने आई। I prayed for her. मैंने उनके लिए प्रार्थना की। The moment I put my hand on her, जिस पल मैंने अपना हाथ उन पर रखा, she just fell. वो तो बस ऐसे ही नीचे गिर गई। I was terrified. मैं खुद डर गया था। I don't even put my hand very forcefully. I just touched it like this. मैंने बलपूर्वक हाथ नहीं रखा था, बस मैंने उसे ऐसे ही छुआ था। I was totally terrified. I didn't want her to break her head. मैं तो डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि उनका सिर फट जाए। But then I saw लेकिन फिर मैंने देखा 2 women were ready waiting to catch her. 2 स्त्रियां बिल्कुल तैयार थी कि जैसे वो नीचे गिरे वो उन्हें थाम लेंगी। They are volunteers, church volunteers. वो तो चर्च वॉलेंटियर्स थी। So they gently make her to lie down. तो उन्होंने बड़े आराम से उसे नीचे लिटा दिया। And then one more lady comes and puts a blanket on her leg. फिर एक और बहन आती है और उनके पैरों को ब्लैंकेट से ढाक देती है। And they say it's anointing, slain in the spirit. और वो कहते हैं ये तो अभिषेक है, ये तो आत्मा में गिर जाना है। For pastors who are listening to me from overseas, please get rid of all these fake anointings. विदेशों से वो सारे पास्टर जो मुझे सुन रहे हैं, आप इस तरह के झूठे अभिषेक से पीछा छुड़ा There is लीजिए। one man. एक मनुष्य है, He sways like this, the whole crowd, sways on one side. He sways this side, whole crowd dashing on each other. जब वो अपना हाथ इस तरह से लहराते हैं एक तरफ तो पूरी भीड़ उस तरफ गिर जाती है, जब दूसरी ओर हाथ फहराते हैं तो वहां के लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। Where did he find this anointing? I don't know. ये सारा अभिषेक कहां से मिला मुझे पता नहीं। Just imagine this. If Jesus is in that crowd, can you imagine him running here and there like that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर यीशु वहां पर उस भीड़ में हो तो जरा सोचिए, यीशु यहां वहां भागते फिरेंगे। What is this nonsense? ये सब बकवास की बात क्या है? New ways, new ways. बिल्कुल नए नए तरीके आ गए हैं। Strange doctrines. ये अजीब से सिद्धांत हैं। Whatever comes in their mind, whatever they imagine,
Everything displayed on stage. जो कुछ भी उनके मन में आता है, जो भी वो कल्पना करते हैं, सब स्टेज पर दिखाते हैं। Another man, you give a CD, oh, he gets anointing. अब देखिए, एक और मनुष्य है, अगर आप उन्हें सीडी दे तो बस उन्हें अभिषेक मिल जाता है। He's sitting in a chair, anointing. वो कुर्सी पर बैठते हैं, तुरंत अभिषेक आ जाता है। Draw a line, cross that, fire. Fire is coming. What fire? I don't know. और एक रेखा खींच लेते हैं, कहते देखो आग है, उसमें आग है। कौन सी आग आ रही पता नहीं। All this, the way they, this strange doctrines. देखिए ये सब किस तरह से वो करते हैं, ये सब अजीब से सिद्धांत हैं। Church of God, be careful. प्रभु की कलीसिया, सावधान हो जाइए। Last days, deceiving spirits are everywhere. अंतिम दिनों में धोखा देने वाली आत्माएं हर जगह Be होगी। careful. सावधान रहिए, Don't be deceived by them. उनके द्वारा आप धोखा न खाएं। The last category is, जो आखिरी विभाग है वो है, I call it sweet or scintillating doctrines. मैं इसे कहता हूं, ये तो मधुर और लुभावने वाले सिद्धांत हैं। 2 Peter chapter 2 and verse 1. दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 1। There, Peter says, यहाँ पत्रस कहता है, there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. जिस प्रकार लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करोगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। This is something you have to listen. इसे हमें गौर से सुनना होगा। This is something you don't find out very easily. ये तो ऐसी बात है जिसे हम बड़ी आसानी से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। Why? क्यों? This will look so good. क्योंकि ये तो इतना अच्छा दिखाई देता है। The truth is, सच्चाई ये है, 95% of the doctrine will be perfect, will be right. 95% जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा। 5% will be false doctrine. लेकिन 5% जो है वो तो झूठा सिद्धांत होगा। 5%. 5%। But just because only 5% is false doesn't make it good. लेकिन यहां पर 5% गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच में अच्छा है। Do you know 99.9% of rat poison is good food? எலி விஷத்துல 99.9% வந்து நல்ல சாப்பாடு। चूहे के जहर में அதுக்காக சாப்பிட முடியுமா? 99.9% अच्छा भोजन होता है, तो क्या आप खा लेंगे? விஷம் எவ்வளவு தெரியுமா? विष कितना है? 0.01 தான், அதான் விஷம்। மத்த அத்தனை என்னது? 0.1%। நல்ல கோதுமை மாவு, बाकी सब अच्छा आटा है, நல்ல மைதா மாவு, अच्छा मैदा है, அதுக்காக சாப்பிட முடியுமா? तो क्या खा लेंगे? 99.9% நல்ல மாவு பாஸ்டர் சாப்பிடுறேன்। 99.9% तो अच्छा भोजन है। That 0.1% of poison makes all the difference. लेकिन 0.1% का जो जहर है वही तो बड़ा फर्क लेकर आता है। In the last days, deceiving false teachers will not even look like totally they are off the scripture. They will stay there most of the time, but in the end, they will very beautifully, as it says, they will secretly introduce destructive heresies. अंतिम दिनों में ये जो भरमाने वाले हैं, ये तो ऐसे भरमाने वाले दिखाई नहीं देंगे, वो तो बहुत ही अच्छे से सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे वचन कहता है कि वो छिप छिप कर अपने इन बुरे उद्देश्यों को पूरा करते चले जाएंगे। One of the classic examples for this is a doctrine that is spreading everywhere called the hyper grace doctrine. अब इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है ये सिद्धांत जो कि हर जगह फैलते चले जा रहा है, जिसे हम हाइपर ग्रेस यानी बहुत ज्यादा अनुग्रह कहते हैं। Hyper grace. हाइपर ग्रेस, अनुग्रह। Now, this was brought to light and made very popular by a Singaporean pastor by the name of Joseph Prince. सिंगापुर के एक पास्टर जिनका नाम है जोसेफ प्रिंस, उनके द्वारा ये तो बहुत ज्यादा प्रचार किया गया है, विख्यात किया गया है। Now, he has a church of more than 30,000 believers in Singapore. सिंगापुर में उनके चर्च में 30,000 लोग आते हैं। He is one of the most popular preachers overseas. वो तो विदेशों में सबसे ज्यादा विख्यात प्रचारकों में से एक हैं। Now, he brought in the doctrine of grace. अब उन्होंने अनुग्रह के सिद्धांत को लाया है। Now, to bring it out, he used a book by the name of Destined to Reign. अब इसे बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है राज्य करने के लिए निश्चित किए गए। Now,
I got a copy of this book. Somebody gave it to me, किसी ने मुझे ये किताब दी and I began to read that book. और मैं इस किताब को पढ़ने लगा। And this is what I found. I'll give you a few sentences what are written in that book. मैंने उसमें ये पाया, चलिए मैं इस किताब में से कुछ वाक्य आपको बता दूं। In page 49, पेज नंबर 49 में हम इस तरह से देखते हैं, he has written, उन्होंने लिखा है, God will never judge America for her sin. परमेश्वर अमेरिका के पाप के लिए उसका न्याय कभी नहीं करेंगे। God will not judge that nation. परमेश्वर उस देश का न्याय नहीं करेंगे। Why? क्यों? All the judgment Jesus carried. क्योंकि सारा न्याय जो है वो तो यीशु मसीह ने उठा लिया है। So whatever sin America will commit, God will not judge. इसलिए अमेरिका जो भी पाप करेगा उसके लिए परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेंगे। Now one more sentence. अब एक और वाक्य, Page 53 of that book. इस किताब का पन्ना नंबर 53। There are nothing but blessings for believers. विश्वासियों के लिए और कुछ नहीं, केवल आशीषें हैं। That means no discipline, no teaching, no exhortation, nothing. Only blessings. यानी इसका मतलब है कि न कोई शिक्षा है, न कोई ताड़ना है, न कोई प्रोत्साहित करना है, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं, केवल आशीषें हैं। Page 53 again. और फिर से चलिए देखते हैं पेज नंबर 53 में ही, Repentance and confession of sin are never necessary. पश्चाताप और पापों का अंगीकार कभी जरूरी नहीं रहा है। மனம் திரும்புவதும் பாவ மன்னிப்பும் தேவையே இல்லை. पश्चाताप और पापों का अंगीकार इसकी अभी जरूरत ही नहीं रही है। And in pages 275 to 276, और 275 से 276 के ये जो पन्ने हैं, he strictly denounces the New Testament doctrine of fasting. ये तो नए नियम के उपवास के सिद्धांत का साफ इनकार करते हैं। No fasting necessary. कोई उपवास की जरूरत ही नहीं है। No prayer also necessary. प्रार्थना की भी कोई जरूरत नहीं है। If you hear his messages, अगर आप उनके संदेशों को सुनेंगे, I can vouch for it. 95% he is an amazing preacher. मैं इस बात के लिए दावा कर सकता हूं कि 95% तो वो बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं। 5% filled with poison. लेकिन जो 5% है वो तो पूरी तरह से जहर से भरा है। In a great church in America, he preached and opened the sermon like this. अमेरिका के एक बड़े चर्च में उन्होंने संदेश की शुरुआत इस तरह से की, Father God and Mother Grace. पिता परमेश्वर और माता अनुग्रह। Where is it in the Bible? बाइबल में ये कहां पर है? Father God, Mother Grace. वो कहते हैं पिता परमेश्वर और माता अनुग्रह। Can you see the way they play with words and in one split second they can bring in a false doctrine? देखिए किस तरह से शब्दों में हेर फेर करते हैं और बस पल भर में ही वो इस तरह से झूठी शिक्षा को लेकर आ जाते हैं। Be careful, church. चर्च सावधान रहिए, These are the last days. ये तो अंतिम दिन हैं And many people will fall from the faith. और बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे। How? कैसे? By 3 ways. 3 मार्गों के द्वारा। Satan will bring false people. शैतान झूठे लोगों को लेकर आएगा, झूठे लोगों के द्वारा वो भरमाएगा। Number 2, by false performances. नंबर 2, झूठे कामों के द्वारा वो भरमाएगा। Number 3, by false preaching. नंबर 3, झूठे प्रचार के द्वारा। Now, how to withstand this? अब इसमें हम कैसे डटकर खड़े रहें How to escape from the danger of apostasy? और कैसे इस तरह की भरमाने वाली बातों के खतरे से बचे? I tell you, this is not a small matter because this has already happened before. ये पहले ही हो चुका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। If you read the Bible, you will know that even people before us have actually become apostates. They fell off from the faith. अगर आप बाइबल में पढ़ें तो आप पाएंगे कि हमारे पहले के लोग भी इस तरह से विश्वास से भटक गए थे। If you come to John chapter 6 verse 66 to 67, यदि आप यूहन्ना अध्याय 6 वचन 65 से वचन 66 तक देखते हैं, when Jesus began to teach about his death, जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बताने लगे, the Bible says, बाइबल कहती है many of his disciples withdrew from Jesus. कि यीशु के बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए।
If you come to Matthew chapter 19 verse 22, अगर आप मत्ती अध्याय 19 वचन 22 देखें, a rich young man came to Jesus asking him, "How can I inherit eternal life?" एक धनी जवान सरदार यीशु के पास आकर कहता है, मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं? Jesus said, "Fulfill all the commandments." यीशु ने कहा, सारी आज्ञाओं को पूरी कर। He says, "I've been following that right from my childhood." वो कहता है, मैं बचपन से इन्हें मानते आया हूं। Okay, then sell all your possessions and give it to the poor and follow me. तो ठीक है, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो Bible ले। says, when he heard that, he left Jesus sorrowful. बाइबल कहती है, जब उसने ये सुना तो वो यीशु के सामने से बहुत ही दुखी होकर चला गया। When Paul writes about this, जब पौलुस इसके बारे में लिखता in है 2 Timothy chapter 4 and verse 10, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 10 में, he says, "Demas has forsaken me, having loved this present world." वो कहता है, दीमुस इस वर्तमान के संसार से प्रेम रखते हुए मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे भुला दिया है। So people will fall from the faith. यानी लोग विश्वास से भटक जाएंगे, And in order for us to escape that trouble, और उस परेशानी और उस मुश्किल से हमें बचने के लिए what should we do? हमें क्या करना है? 3 thoughts. 3 विचार हैं, Write it down. इसे लिख लीजिए। Number 1, नंबर 1, be trained in the word of God. परमेश्वर के वचन में प्रशिक्षित हो जाइए। Be trained in the word of God. परमेश्वर के वचन में प्रशिक्षित हो जाइए। In Acts 17:11, प्रेरितों के काम 17:11 में the Bible says the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. बाइबल कहती ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। Dear church, प्यारे कलीसिया, spend time with God's word. परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताइए। It is good that you come and listen to messages that we prepare with a lot of effort. ये अच्छी बात है कि आप बड़े परिश्रम से आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। It is good that you are taking notes. आप नोट्स ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। It is good that you are listening it to again on YouTube. आप YouTube पर इसे बार बार सुनते हैं, अच्छा है। But if you don't have a practice of personal Bible reading and study, you will not be able to withstand. लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप में बाइबल पढ़ते नहीं हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो इन सारी बातों को आप सहन नहीं पाएंगे। Jesus withstood the devil only through the word of God. यीशु शैतान के सामने केवल वचन के द्वारा ही खड़े रहे। When he brought up the temptation and said, "Let these stones be turned into bread." जब शैतान ने उसकी परीक्षा की और कहा कि ये कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं, Jesus said, "Man shall not live by bread alone." और यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। When he said that answer, immediately he said, he took him to a high place and asked him to jump, because the angels will bear you up in their arms lest your foot dash against a stone. और बाइबल कहती जैसे उसने इस उत्तर को सुना, वो उसे बहुत ऊंचे पर लेकर गया और कहा कि यहाँ से कूद जा, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? It is also written, "Do not tempt the Lord your God." कि ये भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। அதுல முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதி இருக்கிறது. So many times we know what is written, we don't know what is also written. हम कई बार ये जानते हैं कि हाँ ये लिखा है, लेकिन कई बार ये नहीं जानते कि इसके साथ में और क्या लिखा है। என்றும் எழுதி இருக்கிறது தெரியல பாருங்க நம்மளுக்கு. In order to know that, you have to study the word of God personally. और उसे जानने के लिए, समझने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। That's why the psalmist said, "I've hid your word in my heart that I may not sin against you." इसलिए भजनकार कहता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। Training yourself in the word of God is important. परमेश्वर के वचन में खुद को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण That है। is the sword of the spirit. ये तो आत्मा की तलवार है। By that you can quench the wiles of the devil. और उसके द्वारा आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। Many people don't have the habit of reading the Bible at all. बहुत से लोगों की तो बाइबल पढ़ने की आदत ही नहीं है। It is very evident for some of you when I see you. जब आप में से कुछ लोगों को मैं देखता हूं तो मैं इस बात को अच्छे से जान जाता हूं। When I say the book of Esther, you are searching near Mark and Luke. जब मैं एस्तेर की किताब कहता हूं तो आप वहां पर उससे मरकुस और लूका के आसपास ढूंढते That हैं। means you have to waiting for Esther to get resurrected and come to New Testament. इसका मतलब है कि आप राह देख रहे हैं कि एस्तेर जिंदा होगी और फिर वो नए नियम में आ जाएगी।
You don't know the order of the books. आपको किताब का जो क्रम है वही पता नहीं, बाइबल की कौन सी किताबें किस क्रम में है वो पता I'll नहीं। give you an exercise for this week. चलिए इस हफ्ते में आपको एक काम देता हूं। By 7 days, the next 7 days, try to memorize the 66 books in order. अगले 60 दिनों में बाइबल की 66 किताबों को आप क्रमानुसार याद कीजिए। It will be a blessing and a benefit for you. यह आपके लिए लाभ और आशीष का कारण होगा। That's a good start. ये एक अच्छी शुरुआत है। Read the Bible. बाइबल पढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। Be trained in the Word of God. परमेश्वर के वचन में प्रशिक्षित हो जाइए। Number 2, नंबर 2, test everything. हर एक बात को परख लीजिए। 1 John 4:1. पहला यूहन्ना 4:1। Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। In 1 Thessalonians 5:21. पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 देखते हैं। Test everything, hold on to what is good. सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। I wrote 7 points for my personal study. This is not for, I didn't intend to do it in a message, it's for my personal study. मैंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए इन 7 बातों को लिखा है। मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरे खुद के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए है। We talked about men, we talked about people, we talked about performance, we talked about preaching and all. हमने लोगों के बारे में, लोगों के कामों के बारे में और प्रचार के बारे में ये सब कुछ चर्चा की है। Now, how do you understand which is right or wrong? अब आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा सही और गलत How है? to test them? कैसे परखे? I've put 7 points. मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। I will not explain, but just let me give you the points. Just मैं विवरण से नहीं बताऊंगा, लेकिन पॉइंट्स बताता I'll हूं। put it on the screen. If you want, you can write down in English. मैं इसे स्क्रीन पर रखता हूं, अगर आप चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। Simple testers. सरलता से परखने वाले। Number 1, नंबर 1, when you see a miracle or when you see a sign, जब कोई चिन्ह या चमत्कार को आप देखते हैं, check if the claims are unbiblical or intriguing. आप इन बातों को देखें कि उसके जो दावे हैं क्या वो बाइबल के अनुसार नहीं है और क्या कुछ और उकसाने वाले हैं। Number 2, नंबर 2, after they perform that miracle or sign, do they continue in corrupt teaching? जब ये चिन्ह या चमत्कार वो करते हैं, उसके बाद में क्या वो किसी तरह के भ्रष्ट प्रचार में आगे बढ़ते हैं। Third one, नंबर 3, if you look at the person who preaches or performs, ask a question: is there something of questionable character with the person who is doing all this? जब आप उन्हें प्रचार करते हुए या किसी तरह से कोई चमत्कार करते हुए देखते हैं, तो ये देखिए क्या इस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर सवाल उठाने वाली कोई बात है या नहीं। How is their life, their moral life, is it right? उनका नैतिक जीवन कैसे, क्या वो सही है या नहीं। Number 4, नंबर 4, when you look at this, all these things in big meetings, small meetings, whatever, जब आप इसे देखते हैं, बड़ी सभा हो, छोटी सभा हो, कुछ भी हो, what they're doing, are they doing as crowd pleasers or their attitude is more about glorifying Christ? वो जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो भीड़ को खुश करने के लिए कर रहे हैं या फिर वो केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। Number 5, नंबर 5, are they using the miracles and signs to extract money and talk about money, 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 give? Ask yourself that question. आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ये जो चमत्कार ये हो रहे हैं, तो वो क्या केवल पैसा 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 पाने के लिए बढ़ावा कर रहे हैं। Are they saying, I can pray for you, I can break your curse, but it will take this much of expense, give it to me? क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके श्राप को तोड़ सकता हूं, मैं आप पर से ये बीमारी को दूर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए इतना खर्चा होगा, आप मुझे इतना पैसा दीजिए। That's a big test to say something is not right. और ये तो एक बड़ी परीक्षा है कि हम ये कह सके कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ सही नहीं And है। then number 6, और फिर नंबर 6 है, when they are doing that ministry, when they are teaching, when they are performing whatever, are they constantly comparing and competing with somebody else? जब वो किसी तरह से संदेश दे रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो देखिए क्या वो हमेशा किसी के साथ में कोई स्पर्धा कर रहे हैं या नहीं। It's a question. ये एक सवाल है। If you look at Apostle Paul, अगर प्रेरित पौलुस को he देखें, never did that. उसने कभी ऐसा नहीं किया। He said, who is Paul? Who is Apollos? We are all the ministers of Christ. उसने कहा पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है, हम सब मसीह यीशु के सेवक हैं। The last one, आखिरी बात, are they using their preaching or their person or their performance
to create a larger than life picture of themselves? क्या वो अपने प्रचार या अपने काम का उपयोग कर रहे हैं कि अपने जीवन के बारे में और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएं? Are they lacking in humility? या उनमें नम्रता की कमी है? These are good tests. ये तो बहुत अच्छी परीक्षाएं जांचने की बात है। Now, before you go to this testing, इन सारी बातों को जांचने के पहले there is one verse I want to say. एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा। Romans 12:2. रोमियो अध्याय 12 वचन 2। Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते You रहो। want to be able to test and approve? क्या आप सच में परख कर उसको सहमति देना चाहते हैं? சோதித்து அறிய விரும்புறீங்களா? The first thing you have to do is be transformed in your mind first. तो सबसे पहले आपको अपने मन में बदल जाना होगा, अपने मन को बदलना होगा। Without personal self transformation, you cannot be able to test the spirits properly. आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप में बदले बिना आप आत्माओं को सही तरीके से परख नहीं सकते हैं। நீங்க ஆவிகளை சோதித்து பார்க்கவே முடியாது. It is like this. Before your blood is tested, they collect it in a beaker, and before they put that blood in a beaker for testing, they first clean the beaker. आपका ब्लड टेस्ट करने के पहले वो आपके खून को उस एक पात्र में रखते, बीकर में रखते हैं, और उसमें खून रखने के पहले वो उसे साफ करते हैं। After that only the testing will be perfect. और फिर उसके बाद में टेस्टिंग बिल्कुल सिद्ध होगी। Without heart transformation, you cannot test the spirits. जब तक कि आपका हृदय न बदले, आप आत्माओं को परख नहीं सकते हैं। The last one. आखिरी बात, Trust no one by words or mere appearance. किसी के शब्दों के द्वारा या उनके दिखावे के द्वारा किसी पर भरोसा मत रखिए। Trust no one by words or appearance. Only trust God. आप किसी के दिखावे या उनके शब्दों के द्वारा उन पर भरोसा मत रखिए, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, केवल प्रभु पर भरोसा रखिए। Matthew 7:15-20. मत्ती अध्याय 7 वचन 15 से 20 तक ये कहता है, Watch out for false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान They रहिए। come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. वे तो भेड़ की खाल पहनकर तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंदर से वो तो फाड़ खाने वाले भेड़िया By हैं। their fruit you will recognize them. उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे। What is it? ये क्या है? Not by their appearance, not by their clothing, not by their voice, not by their anything, but by their fruits. उनके दिखावे के द्वारा, उनके कपड़ों के द्वारा, उनके आवाज के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा नहीं, लेकिन उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचानोगे। And fruits don't happen overnight. और ये जो फल है वैसे रातों रात नहीं लगते हैं, अचानक नहीं आते हैं। It takes time. इसके लिए समय लगता है। It takes time. That is why before you trust somebody with signs and wonders and miracles, please give enough time before you associate with them. देखिए, जब आप किसी के चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों को देखते हैं तो आप समय लीजिए, इसके पहले कि आप जाकर उनके साथ में जुड़ जाएं, आप समय लीजिए, निश्चय इन सारी बातों को जांच लीजिए। If they don't exhibit Christ-like character, अगर वो मसीह के जैसे चरित्र को नहीं दर्शा रहे हैं be warned. तो सचेत हो जाइए, Be warned. सचेत हो जाइए। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, you watch carefully the life of your shepherds and follow their footsteps. अपने चरवाहों के जीवन को सावधानी से देखिए और फिर ही उनके पद चिन्हों पर चलते जाइए। It takes time. इसके लिए समय लगता है, It takes time. समय लगता है। I pray that God will save us from the apostasy that is going to come in the last days. मेरी प्रार्थना है कि अंतिम दिनों में ये जो भरमाने वाली बातें हैं, इनसे परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे। How many of you want to do that? कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Lord, save me from the evil of the last days. प्रभु, अंतिम दिनों की इन सारी बुराई से मुझे बचा कर रखिए, यही प्रार्थना कीजिए। Protect me, Lord. मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, Preserve me, Lord. मुझे बचा कर रखिए प्रभु, And let me be found in your glory. और मैं आपकी महिमा में पाया जाऊं। When the saints go marching by, और जब संत आगे बढ़ते चले जाएंगे, I want to be among the number. मैं उनमें एक होना चाहता हूं। प्यारे दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले दिनों में यदि
आप हमारी आराधना सभाओं को देखना चाहे तो आप एसीए आवरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करें। अपने अनुभवों को स्पष्ट पता एवं फ़ोन नंबर सहित acaavri@gmail.com नमक ईमेल एड्रेस में भेजें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9380217774 तथा 9382217774। परमेश्वर आपको आशीषित करे।